یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. سنیچر 15 نومبر کے سیربین کے اہم موضوعات. بہار انتخابات میں غیر معمولی جیت نے مودی کو انڈیا کا سب سے طاقتور رہنما بنا دیا. غزہ کے 153 افراد کا بغیر ایگزٹ مہر چارٹرڈ فلائٹ سے جنوبی افریقہ پہنچنا مہمہ بن گیا. Yesterday we had a plane of 160 we're carrying 160 Palestinians landing at OR Tambo. جنسی مجرم جیفری ایپسٹن کی ای میلز میں ڈونلڈ ٹرمپ کا تذکرہ. نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی ٹرانزیشن ٹیم میں پاکستانی نیاد لینا خان بھی شامل. اور جانیے رات کو روٹی کھانی چاہیے یا چاول، صحت کے لیے کیا بہتر ہے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ ہوں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. بہار اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP اور جنتا دل یونائٹڈ نے غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تقریباً 3/4 نشستیں جیت لی ہیں. BJP نے 89 اور JDU نے 85 نشستیں حاصل کی، جبکہ کانگریس صرف 6 اور اس کے اتحادی یادیو کی پارٹی 25 نشستوں تک محدود رہی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بہار کے عوام نے ترقی کے ایجنڈے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ اپوزیشن نے نتائج کو حیران کن اور غیر شفاف انتخابی عمل کا شاخسانہ قرار دیا ہے. سیاسی ماہرین کے مطابق نتیش کمار کی مضبوط ساکھ، خواتین کے لیے سرکاری اسکیمیں اور BJP کا وسیع تنظیمی ڈھانچہ اس جیت کے اہم عوامل ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی کی مقبولیت مزید مضبوط ہو گئی ہے اور اب ان کی نظر مغربی بنگال کے آئندہ انتخابات پر ہوگی. غزہ سے تعلق رکھنے والے 153 فلسطینی ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے جنوبی افریقہ پہنچ گئے ہیں. تاہم ان کے پاسپورٹس پر ایگزٹ مہر نہ ہونے کے باعث انہیں 10 گھنٹے تک جہاز میں ہی رکھا گیا ہے. مقامی فلاحی تنظیم کی مداخلت کے بعد مسافروں کو ملک میں داخلے کی اجازت دی گئی، مگر ان کا غزہ سے پراسرار طور پر نکل کر اسرائیل کے رامون ایئرپورٹ سے کینیا کے راستے جنوبی افریقہ پہنچنا اب بھی سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. جنوبی افریقہ کے صدر نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے، جبکہ فلسطینی سفارتخانے نے بتایا کہ طیارہ بغیر پیشگی اطلاع کے پہنچا. Yesterday we had a plane of 160 we're carrying 160 Palestinians landing at OR Tambo, and these are people from Gaza who somehow mysteriously were put on a plane that passed by Nairobi and came here. And I said, we cannot turn them back. Even though they do not have the necessary documents and papers, these are people from a strife-torn, a war-torn country. And out of compassion, out of empathy, we must receive them. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد تیسرے ملک کی اجازت سے غزہ سے باہر نکلے. دوسری جانب امریکہ اور متعدد مسلم ممالک نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ امن منصوبے کی جلد منظوری دی جائے، جس میں بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی تجویز بھی شامل ہے. امریکی کانگریس اگلے ہفتے ووٹنگ کرنے جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹن سے متعلق اہم کیس فائلز کو عام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. کمیٹی کے ڈیموکریٹ اراکین نے پہلے ہی کچھ ای میلز جاری کر دی ہیں جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر موجود ہے. وائٹ ہاؤس نے ان دستاویزات کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا ہے. جاری شدہ مواد میں ایک ای میل اینڈریو ونسر اور ورجینیا جیفری کی تصویر کے حوالے سے ہے، جو ایپسٹن کیس میں متاثرہ خواتین میں شامل رہی ہیں. اینڈریو ونسر نے کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے کی مسلسل تردید کی ہے. ایپسٹن کیس کی ممکنہ فائل کی ریلیز نے امریکی سیاست میں نئی ہلچل پیدا کر دی ہے، جس پر مزید بحث کانگریس کی ووٹنگ کے بعد سامنے آئے گی.
न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी ने अपनी ट्रांजिशन टीम का ऐलान कर दिया है, जिसकी को चेयर्स में 4 खवातीन भी शामिल हैं। इनमें पाकिस्तानी नियाद अमरीकी और मारूफ माहिर मुआशियात प्रोफेसर लीना खान भी शामिल हैं। टीम की तश्कील को जोहरान ममदानी के मुतनव्वे क़यादत के वियन का अहम कदम करार दिया जा रहा है। मज़ीद तफसील समेत ककरू से। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने अपनी ट्रांजिशन टीम तश्कील दे दी है, जिसकी को चेयर्स में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी प्रोफेसर लीना खान समेत 4 खवातीन शामिल हैं। इस ट्रांजिशन टीम का काम ममदानी के लिए न्यूयॉर्क की नई इंतजामिया तश्कील देना होगा। 36 साल लीना खान साबिक सदर जो बाइडन की हुकूमत में फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह भी रह चुकी हैं। तो लीना खान कौन है? लीना खान बरतानिया में एक पाकिस्तानी खानदान में पैदा हुई। जब वो 11 साल की थीं तो उनका खानदान अमरीका हिजरत कर गया। अमरीका में उनकी तालीम मुकम्मल हुई और कुछ अरसे पहले उन्होंने टेक्सास के एक कार्डियोलॉजिस्ट शाह अली से शादी की। लीना खान न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोबे कानून में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। उनके एंटी ट्रस्ट कवानीन पर तहकीकाती पेपर्स को मोतबर हल्कों में बहुत सराहा गया है और उन पर उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। लीना खान का कहना है कि जोहरान ममदानी की टीम का हिस्सा बनना एक एजाज की बात है और वो एक ऐसी इंतजामिया तश्कील देने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं जो पहले दिन से ही न्यूयॉर्क के तमाम लोगों के लिए काम कर सके। इससे पहले लीना खान अमरीकी कांग्रेस की हाउस जुडिशल कमेटी की ज़ैली कमेटी बराए एंटी ट्रस्ट कवानीन, कमर्शियल और इंतजामी कानून के वकील की हैसियत से भी काम कर चुकी हैं। माजी में लीना खान को अमरीकी मैगजीन टाइम के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी 100 मुतासिर कुन रहनुमाओं की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। सामीन, अगर आप समझते हैं कि सेहतमंद ग़िज़ा के लिए रोटी और चावल छोड़ना ज़रूरी है तो माहिरीन के मुताबिक ये एक आम मगर गलत तस्वुर है। ग़िज़ाइयत के माहिरीन का कहना है कि रोटी और चावल सेहत बख्श खुराक का हिस्सा बन सकते हैं, बस शर्त यह है कि दुरुस्त किस्म का इंतखाब और मुनासिब मिकदार का ख्याल रखा जाए। आज के BBC रीड्स में चंदन कुमार की रिपोर्ट और खतीजा आरिफ की पेशकश में बताया गया है कि कौन सी रोटी और किस किस्म के चावल आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं और इन्हें कब और कितनी मिकदार में खाना चाहिए। तो आपने भी अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि यार डाइट तो मैं कर लूँ लेकिन रात को रोटी और चावल नहीं छूटते। खैर, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। चावल और रोटी पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया के कई ममालिक में खाने का अहम हिस्सा होता है, लेकिन ये बहस भी अब आम हो गई है कि चावल और रोटी में से क्या खाना सेहत के लिए बेहतर है, ख़ास तौर से डिनर के वक्त। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चावल और रोटी दोनों स्टार्च हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए अहम है। बस आपको ये समझना है कि आप किस तरह की रोटी और चावल और कितनी मिकदार में खा रहे हैं। आप चावल और रोटी छोड़े बगैर कैसे एक हेल्दी डाइट खा सकते हैं, इसी बारे में है आज का BBC रीड्स। तहरीर है BBC हिंदी के मेरे साथी चंदन कुमार की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। बहुत से लोग रात के खाने में चावल और रोटी दोनों खाते हैं और उन्हें इसी में तवाज़ुन नज़र आता है। पाकिस्तान जहां रोटी का रिवाज ज़्यादा है और चावल डाइट का अहम हिस्सा है, वहीं इंडिया की रियासत बिहार, मगरबी बंगाल और उड़ीसा जैसी रियासतों में चावल लोगों की अहम खुराक है, जबकि पंजाब या मध्य प्रदेश समेत कुछ दूसरे इलाकों में लोग रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रोटी या चावल, इनमें से बेहतर क्या है? माहिरीन इस बहस को महज चावल और रोटी की बुनियाद पर नहीं देखते। आपके खाने की प्लेट में रोटी होनी चाहिए या चावल, इसका इन्हिसार बहुत सी चीज़ों पर है। मिसाल के तौर पर आप किस किस्म के चावल या रोटी खा रहे हैं, ये भी अहम है कि आप इसे कितना और किस तरह खाते हैं। खाने की प्लेट में चावल हो या रोटी, दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि रोटी में चावल के मुकाबले कम कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए ये सेहत के लिहाज से बेहतर है। यहाँ बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS की तजवीज़ है कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए होल ग्रेन आटे की रोटी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी डाइट से रोटी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। NHS का कहना है कि अपनी डाइट से किसी भी एक फूड को बिल्कुल निकाल देना गलत है, क्योंकि आप इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट से महरूम हो जाते हैं और लॉन्ग रन में आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो वो अलग बात है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें।
अब ये कि कौन सी रोटी और किस तरह का चावल बेहतर है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर ग़िज़ाइयात नाज़नीन हुसैन कहती हैं कि अगर आप बग़ैर छना हुआ आटा या ज़्यादा फाइबर से बनी रोटी खाते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर रिफाइंड आटे से बनी रोटी खा रहे हैं तो ये चावल जैसी है और इसे खाने के बाद भी शुगर के लेवल तेज़ी से बढ़ सकते हैं। वो कहती हैं कि लंबे और पॉलिश वाले चावल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बग़ैर पॉलिश वाले छोटे चावल कदरे बेहतर हैं। फाइबर को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयात अक्सर लोगों को ब्राउन राइस या बग़ैर पॉलिश किए हुए चावल खाने का मशवरा देते हैं। एक और सलाह ये भी दी जाती है कि चावल के साथ दाल, हाई प्रोटीन दही या सब्जियों का इस्तेमाल करें। चावल का दलिया, खिचड़ी या पुलाव खाना भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एम वली कहते हैं कि आज लोग जिस किस्म का बिल्कुल सफ़ेद और खूबसूरत दिखाई देने वाला आटा खा रहे हैं वो चीनी, रिफाइंड आटा और नमक की तरह सफ़ेद जहर बनता जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि हमारे खाने की आदत में ये भी गलत है कि हम रोटी ज़्यादा और सब्जियां कम खाते हैं। अगर आप चावल के साथ ज़्यादा सब्जियां खाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर होता है, यानी इससे पैदा होने वाली चीनी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता घुल जाती है। इस तरह ये रोटी से बेहतर है। डॉक्टर वली का कहना है कि अगर आप रोटी के आटे को हरे पत्तों वाली सब्जियां या लौकी के साथ गूंद लें तो ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब ये कि चावल और रोटी में फ़र्क क्या है। चावल और रोटी में बुनियादी फ़र्क ये है कि चावल उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, मसलन वो लोग जो शदीद जिस्मानी मशक्क़त में मसरूफ़ हों। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाने से बचना चाहते हैं या ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहते तो रोटी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। इससे पेट ज़्यादा देर तक भरा महसूस होता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की माहिर ग़िज़ाइयात माला मनराल कहती है कि बेहतर होगा अगर आप अच्छी प्रोटीन वाली रोटी लें। गोश्त खाने वालों के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं और सब्ज़ी खाने वाले यानी वेजिटेरियन अफराद के लिए रोटी के साथ सब्ज़ी या दाल लेना ज़्यादा बेहतर है। माला कहती हैं आपको क्या खाना चाहिए इसका इन्हिसार आपके काम और तर्ज ज़िंदगी पर है। अगर आप बैठकर काम करते हैं तो आपको कम कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। वो ऐसे लोगों को रोटी खाने का मशवरा देती हैं क्योंकि अगर वो ज़्यादा चावल खाते हैं तो उनमें मोटापे का ख़तरा होता है। माला कहती हैं कि हर शख्स को उसकी जिस्मानी सरगर्मी और उम्र के लिहाज से एक ख़ास मिक़दार में कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। वो कहती है फ़र्ज़ करें किसी को डेली 1600 कैलोरीज़ की ज़रूरत है तो वो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि उस शख्स को इसमें से 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन और तकरीबन 20% फ़ैट मिले। इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी, चावल और सूजी, जबकि प्रोटीन के लिए अंडे, मीट, फ़िश, वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए पनीर और फाइबर के लिए सब्जियां शामिल की जाती हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों को मशवरा दिया जाता है कि वो चावल खाने से गुरेज करें और ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा खाएं। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि रेफ्रिजरेटर में रखे चावल फाइबर की मिक़दार के लिहाज से बेहतर समझे जाते हैं। नाज़नीन हुसैन कहती हैं कि चावल को फ्रिज में रखने से उसका रेजिस्टेंस स्टार्च फाइबर में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसे खाने से शुगर लेवल्स में अचानक बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता। तो अब ये कि क्या लोगों को खाने के हवाले से मशवरे किसी इलाके को मद्देनज़र रख के भी दिए जाते हैं। आम ख्याल ये है कि जो खाना हम बचपन से खाने के आदी होते हैं वो उमूमन हमारे लिए हज़म करना आसान होता है और वही खाना हमें इत्मीनान भी फराहम करता है, यानी पेट उसी से भरता है। नाज़नीन हुसैन कहती हैं कि किसी मखसूस इलाके में जो कुछ भी पैदा होता है वो उस इलाके की अहम खुराक बन जाता है और आम तौर पर लोगों को ऐसी खुराक खानी चाहिए। डॉक्टर वली कहते हैं कि बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग रोटी पकाना भी नहीं जानते। इंडिया के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोग सिर्फ चावल खाते हैं। इंडिया के जुनूब में डायबिटीज़ के मरीज़ भी चावल खाते हैं, लेकिन इस चावल में वो बहुत सी चीज़ें शामिल करके पकाते हैं ताकि वो आसानी से हज़म हो जाए और शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बरतानिया समेत दुनिया में बहुत से एक्सपर्ट इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि आप जो भी ग़िज़ा खाएं उसका सिलेक्शन अपनी दिन भर की एक्टिविटी के मुताबिक करें और बेशतर डाइटिशियंस और डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो ये कोशिश करें कि आप रोटी खाएं या चावल, उसकी मिक़दार आपकी प्लेट में मौजूद फाइबर और प्रोटीन के सोर्सेज से बहुत ज़्यादा ना हो, यानी एक बैलेंस डाइट आपके लिए बेहतर है।
और हाँ, रात को आप रोटी खाएं या चावल, लेकिन मेक श्योर कि आप सोने से कम 4 घंटे पहले अपना डिनर ख़त्म कर लें, ताकि आपकी बॉडी को खाने को हज़म करने में रात भर मेहनत न करनी पड़े और आप सुकून की नींद सोएं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। सच वो नहीं जो सब दिखाते हैं, सच वो है जो ZBC सैरबीन दिखाता है। मुल्क भर में TLP के खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, बस सारा ड्राइवर लोग जो है ना गाड़ी के नीचे छुपा थे। ये कहानी लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक गोदाम में एक डब्बे से शुरू हुई। But like I'm not here to say, you know, I want to defend myself or I have done. पिछले 10 सालों से ZigZag न्यूज़ वो कहानियां सामने लाया जो आम मीडिया छुपाता रहा। पाकिस्तान के ये इंतहाई दौलतमंद खानदान कौन से थे, दौलत कितनी थी उनके पास। अब हम लेकर आए हैं ZigZag न्यूज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 500 रुपए माहाना में आपको मिलेगा खुसूसी मवाद, गहरे तज्जिए और वो हकीकतें जो आम नाजरीन नहीं देख सकते। बस फीस भेजें जैज़ कैश या बैंक अकाउंट पर, स्क्रीनशॉट शेयर करें और हम आपको भेजेंगे प्राइवेट वीडियो लिंक। ZigZag न्यूज़, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिखाई जाती है।